Welcome to Pointless Stories with Karsh and FS. This is episode number 9. We don't know what it's called. But picking up on something that we talked about in episode 3, the last time we talked, there's a song and a band that was mentioned by Karsh, which I have listened to before. I know the song, but I haven't heard that name in ages. And so for the past week, this song has been playing on repeat on my phone. And Karsh, if you're up for it, I'll play it for you so you know which one I'm talking about. But there's this one line in the beginning that they say, which यार मुझे तब भी याद है, अब भी याद है और हकीकत ही लगता है. But I'll play it for you. Winter shopping at Shine. Cratchit Win, apologies November for 9th, the 2023 ads, to February 9th, 20... No, it's all good. Right. You can hear, yeah? Oh my, come on. वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया. 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया. क्या हुआ जो लाई छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा. जिंदगी इस पल में साली, यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता. Man, I have to thank you for bringing this back into my life because it's been on repeat ever since, man. And I love the line in the beginning. It's perfect. Man, that's I'm so happy that it like rekindled, a light in you, and some like rekindled a part of you that you Forgot about. haven't seen in a Yeah. while. Yeah. But man, that's how I feel every time I listen to the song, because it really takes us back to a simple and easier time, and it was just so iconic when it came out, and still is, I it's can't one of believe those songs like where the, it's like only the yeah. Apologies. Go on. yeah no. Like No, go on. even though it's all rock, yeah, I can't believe how good it sounds. It's been years, and it sounds so good. I don't know why. I think of all the genres, this is probably one of our favorites. Yeah, I agree, man. I mean, Pakistani rock bands were truly exceptional. I don't know why this happened, but there was a culture of rock music that just took off in Pakistan, Yeah, but especially didn't in quite. universities. Yeah, it didn't happen in India. Especially Yeah. what? In universities, because Exactly. they were all You know, underground and, bands. Yeah. there were so many underground bands, and there was just this culture of having a band and playing the guitar, and rock music was always just so really popular there. It's kind of there are two things that really, I think, India and Pakistan, they're more similar than we like to admit. I would say if you were to compare 10 things, right? Right. 8 of them would be very comparable. I agree. But there are two things that always there are a few things that I think really stand out as differences. Right. One of them was rock music. Yeah. There wasn't the same culture of just boys being in a rock band, and good rock music coming out of India. Yeah. In all Indian films, the rock bands would be Pakistani, Yeah, true. True.
like Jal, The Call, Strings, all of these bands. Yeah. That's one, and the second was squash. I don't know if you remember this, but I know what you mean, but dude, it's been so long. But squash, I agree. yeah, it was weird, man. But like Pakistan was always really good at squash, you know. Yeah, and I don't remember anybody except Amir Khan playing squash from India. Yeah, I feel like, you know, it never really. Took I mean, off. in India, anything other than cricket, like, Yeah. there was no, you know, no major like team. Exactly. But squash, man, I don't know why, but and Pakistanis enjoyed it too. Like, you would often see like them watching squash, or, you know, taking an interest in the sport. Yeah. I really don't know how that happened. Like, it just never became a thing in India, but it did in Pakistan. But it's interesting. No, I agree. That's quite insightful, man. Because like even squash is not a sport that I've heard about in like decades. Because it was big when we were younger. When we were actually playing, squash was a proper thing. But I think the one difference that Pakistan has is the American influence, and I'm not sure where that comes from, but they're really big. Especially, I mentioned Ayub Khan, and like he had a culture of working with the United States and a lot of things. So I think whereas India had like a closed history, you know, India wanted to do its own thing, not be under any Western influence. Pakistan was slightly more open to, especially military relationships, which ended up bringing in culture, I guess, from the US. But like, it doesn't exactly explain. Like, even Coke Studio is the best example, because like Coke Studio Pakistan is the best, and Coke Studio India is just trash. But Yeah, man, that's another thing I was thinking of is like, you know, they really had this big like revival of like their folk music, of like their traditional genres of music, and they like found such a unique way to like fuse it with like modern instruments and like modern music, and have just like this fusion of like modern and traditional. absolutely. And they really perfected that, man. I think like just a lot of like performing arts in general, like Pakistan has always been like a standout in that, you know, like there've been so many actors in Indian movies, so many like singers and performers who are Pakistani, you know, and you know, that's another thing I was thinking of when you played the song, Right. is there are three things I love about it, right? It's by like it's a genre of music that we fell in love with, like Yeah. EP. Do you remember EP? Yeah, dude, absolutely. Yeah, like EP were one of my favorites, you know, and this was around the time when all of them were big, like all the major Pakistani rock bands. Yeah. But this one, right? It's like it was that, B, it's like the movie itself is one that I really like. Yeah. Agreed. The Ek Chalis Ki Last Local. Easy. And I'm surprised by how much of Mumbai is part of the song, you know, like it's pretty well, like that's an understanding that is hard to get for somebody who's, you know, not from there. I know for sure, man. Yeah, because like even the name of the movie, right? Ek Chalis Ki Last Local. It's Yeah. like just such a reference to something that only Somebody from Mumbai would understand. Yeah, like Ek Chalis, you know? Like every city has unique things like that. Again, it's like, you know, it just happens that Mumbai is like the big one, so Yeah. those are the stories that we see on the screen. Yeah. But yeah, man, every city has like some unique things like that make it what it is. I think Sydney has one that's like Lockout, which would be kind of like similar to the Ek Chalis, you know? I know, what you mean. But yeah, man, I mean, this is it was such a good movie too, you know, like how his life just turns around from like from playing this like game, you know, like he just gambles a lot of money and then happens to win. Yeah. And it was pretty like
rated R too. You know what I mean? Yeah, true. Which is rare. And he's also just one of my favorite actors, man. Alvin Diol. I agree. He's very different. He's a proper actor. He really is, man. Like, he's only done a few roles in his life, but There's one more that I like, nine out- where he keeps saying Masri. I'm not sure what the movie. Oh, dude, you named my favorite role of his. That was Oi Lucky. Lucky. Oh, yeah. Yeah, that one's, man. That's a brilliant fucking movie, It dude. is, Like, it gets eclipsed by its like more popular. Right. Like the director who made it, right? Yeah. He's the one he also made Costa Ga Costa. No way, man. They're very fringe elements, but I've actually seen all of them. मुझे पता नहीं ये references कहाँ तक हमारे मुताबिक रहेंगे. मगर बताओ यार. But nahi yaar, ye baat hai ki, you know, they're both like on. Interestingly, they're both based in Delhi, not in Mumbai, because Yeah. like most films are based in Mumbai, right? That's Right. like a theme. Yeah. But because the director grew up in Delhi, his movies are usually based on Delhi. Like Delhi is a part of his like of the movie, you know. Right. And so yeah, like if you watch Costa Ga Costa and Oi Lucky, they're both based there. Yeah. But Costa Ga Costa was like a real hit, you know. Like everyone loved it. Yeah. It was like commercial successful as well. Yeah. And it was like very, very well made, you know. Like, but Oi Lucky kind of got eclipsed by that one. Like it wasn't as successful. True. But it's a cult classic. But it's a cult classic, man. That's exactly it. And Yeah. in my opinion, it's better, you know. Like it's I just agree. Yeah. It's like you don't see many movies like that coming out of Bollywood. Like just creative, like neo-noir type movies, you know. Yeah, 100%. I agree with you, man. It's wonderful. But man, I love him as an actor, and you know that's why I love that movie too, and the song from it as well. Like the song was probably more popular in the movie, wouldn't you agree? Like I agree. I've heard. I know more people have heard the song than the movie. yeah, man. Most people I know haven't even seen the movie, but they would know the song for sure. Exactly. But going back to Coke Studio, man, like you're absolutely right. There's this one season of Coke Studio where Farida Khanum is there and she's singing Aaj Jaane Ki Zidd Na Karo. Come on. And the rest of the season has like Ali Zafar singing. There's this one song called Judy, which is proper modern. So they've got the tribal elements, the classic elements, the rock elements, and it's all just in one season. And there's a couple of things that I want to tell you. Like at the time, there's this. You know the girl who got married a couple of weeks ago, yeah? So when I first started talking to her, and I told you, Bobby, this key, the song that was stuck in my mind at the time was, it's a Kawali by Nusrat Saab, which is Kive Mukde. Or I told her, I told you, Bobby, I told her that's what's stuck in my head. And she's like, oh, मुझे हिंदी गाने नहीं आते हैं. And I said, यार ये हिंदी नहीं, वो पंजाबी है. And so I told you, Bobby, it will be like I will be living as an imposter for the rest of my life because the things that completely interest me cannot be understood by the other person, right? But when I was talking about Kive Mukde, your Bhabhi comes in and she says, it's one of my favorite songs. और यार किस्मत भी बड़ी कमाल की चीज़ है. One of the things that I hold most dear in my life is music, and आपकी भाभी की भी जो sense of music है वो काफ़ी मुताबिक है कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है is one of her favorite songs, one of mine as well, and we like songs like that. And there's this one very fringe song which is, I don't know if you've heard this, it was on Coke Studio, I think 2019. It's called Teri Tasveer, and it's by a small band called Bayan.
and it didn't take off, or it wasn't very big outside Pakistan. But I remember, like, at the time it came out, it was on repeat the whole time, right? And I didn't know कि आपकी भाभी ये गाने तो जानते थे, और मेरी ज़िंदगी में और कोई ना है जो ये गाने को याद करता है. But I still do this thing where when I'm listening to music, I'm generally listening to music in the gym and whenever I'm free. So if I like a song, or if it's a song that I like, I take a screenshot of what I'm listening to and I send it to her. And sometimes I put the lyrics in, like there's this 1 or 2 lines that really like me, so I send that to her as well. तो एक बार, and that's how we discovered, you know, we didn't talk about our favorite songs. मैं ये बेचता रहता और वो कभी कभी बताता कि I love this song. तो एक बार मैंने इससे तेरी तस्वीर भेज ली, and I had absolutely no hope that she'd even know what this song is, and she said it's one of my favorites, and I said no, there is no way this is true. Like, you know, again I'll say this, किस्मत बड़ी खास बात है यार, कि it's still something that like I'm surprised by, but at the same time I'm very happy कि आप जानते हैं हमारे म्यूज़िक सेंस कैसे होते हैं कि काफ़ी अलग है ज़माने से, और to be able to share that with somebody, I feel like if we were in a car and you played my playlist or hers, it'd be the same thing, and we'd just be able to sing along, और यार वो काफ़ी like that's enough, you know, वो काफ़ी है. Like finding someone with the same music taste as you, Yeah. especially when you have such an obscure taste in music, you like songs that are obscure and not very well known. Yeah. That honestly hits different. Like, have someone with that shares the same special taste as you, you know, it's like. For a quick stroll. Absolutely, man. Yeah, और जो भी कव्वाली है, and I know आप भी बड़े मारे हैं कव्वाली के, but like most of Nusrat Saab's kawwalis are things that we hold very, very dear, and I can't tell you how many times I've screenshotted the same song and put different lyrics, because there's so many lines that I like from most of those. And यार कि हम जितने भी शायर निकले ना, कभी ऐसे बात तो कह नहीं सकेंगे कि आईने की नज़र लग ना जाए कहीं, जाने जा अपने सदका उतारा करो. And I don't know, that's another fringe kawali from Nusrat Saab, but it's one that I like a lot as well, कि चांद भी शर्माओगे आपको देखकर. एंड हम यार काफ़ी रोमांटिक बंदे हैं, मगर हम भी ऐसे तो बात कहते हैं. एंड आई टोल्ड हिम वेरी रिसेंटली, कल ही बताया था कि एक लड़की है कि वो मेरी बातों की यकीन नहीं मानता है, कि हम जब कहते हैं वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्स है, वो यकीन नहीं करते, मगर हम उसे कैसे बताओ कि वो हमेशा हमसे ये कहता है कि और भी खूबसूरत लोग हैं, और हम उसे ये कैसे समझाओ कि चांद चांद होता है और बाकी जो भी सितारे सिर्फ सितारे होते हैं. And I don't think she believes me. कि I've said this so many times कि you know दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्स है. I do not think she believes me, but like अगर आप तो मुझे जानते हो, you know, like in the 22 years that I've known you, कि मैं किसी के बारे में एक भी अच्छे लफ्ज़ नहीं कहा. सही, ज़्यादा से ज़्यादा कहते होंगे कि यार ठीक है, मगर इसके बारे में सिर्फ यार तारीफ़ आता है. और मुझे अच्छा भी लगता है कि I'll tell you this, कि कल मेरी वालिदा शरीफा ने एक ख़त भेजा था हमारे ग्रुप में. सही, तो वो अपने मुल्क में वो अपने आप की मज़े ले रहे. तो her and my father, वालिद साहब, they grew up right next to each other, right?
So No they way. so they used to court each other like it's not an arranged marriage, which is why I don't believe in arranged marriages. So they met each other when they were around 15. So it was also, even though they're kind of from the same background, from the same place, उसकी मोहब्बत भी ज़माने के ख़िलाफ़ थे, तो they had to keep it under wraps for a while. तो ये लिखते थे उस ज़माने में, मेरी वालिदा की घर में इतने लोग होते थे कि फ़ोन भी नहीं कर सकते थे. So they used to write to each other. और मेरे वालिद साहब की यार काफ़ी दोस्त थे जो उसकी मदद करते थे. और मुझे हमेशा ये लगता है कि यार मोहब्बत करने में तो दोस्त ज़रूरी है, कि मैं ख़ुद ब खुद ये नहीं कर सकता, कभी ना कभी किसी की मदद चाहिए होता है. तो he used to write to her and his friends would deliver it to her house without anybody knowing, and she'd reply and his friends would come collect that and give it to her, you know. So इन दोनों की हज़ारों ख़त पड़ी है कि जब तक उनकी शादी तो 23 पर हुए थे, मगर जितने ख़त है 1000 है यार. और वो मेरी वालिदा की जो घर है उसकी एक अलमारी है, उसके अंदर थे. तो उसने कल फ़ोटो भेजी कि सिर्फ़ एक ख़त किया, और उसमें यार मेरी वालिद साहब की, वैसे हमारे वालिद साहब तो काफ़ी हमसे ऐसे बात नहीं करते थे कि काफ़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप था हमारे, हम एहसासत के बारे में कुछ नहीं कहते थे. तो ही नेवर टोल्ड मी हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी. मैं वालिदा की जानता हूँ कि वो तो बेबो है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ऐसी पर्सनालिटी उसकी, सब बताता है. मगर वालिद साहब तो काफ़ी क्लोज ऑफ थे. मगर उसकी ख़त पढ़ा और उसमें ना तो 1991 की ख़त थे और इसकी शादी होने की 2 साल पहले थे. तो बंदे तो यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी से एक हफ़्ते में 2 बार इन्हें मिलने घर आए थे. और उसकी ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त चल रहे थे कि उसकी यूनिवर्सिटी में तो उसकी HOD तो उसकी पीछे पड़े थे कि यार आपको नज़र ही नहीं आता है, और बाकी सब भी उसके ख़िलाफ़ चल रहे थे. वक्त जैसे मेरे बुरा वक्त चल रहा है ना, उसकी भी बुरा वक्त चलते थे उस ज़माने में. तो उसने लिखा कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप है एक खुशी, और मेरी वालिदा तो काफ़ी गुनहगार है यार, वो काफ़ी नखरे है उसकी, जैसे मैं ऐसे ही हूँ, कि वो भी उतना इसको माना नहीं, उसकी मोहब्बत माना नहीं. तो मेरे वालिद साहब तो शिकावतें कर रहे हैं और बड़ी क्या कहते हैं यार, कि अच्छे तरीके से तहज़ीब से वो शिकावतें कर रहे हैं कि कि यार आप ऐसे ना किया कीजिएगा, कि मेरे दिल में जो एहसास है वो हकीकत है, और आप मानो या ना मानो, ये मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है और ये कभी कम नहीं होंगे. तो मेरे वालिदा तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और उसने कहा कि यार ऐसे नहीं किया करो. और मैंने यार वो ख़त पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी ज़िंदगी में अब जिस दौरान में अब है कि वही चल रहा है, कि मेरे बेहद मोहब्बत है और अब तक माना नहीं, कबूल नहीं हुआ. तो वो यार ख़त पढ़कर मैं काफ़ी थम गए दिल कि यार अगर मेरे वालिद साहब की और वालिदा की बात हुए तो शायद मेरे भी हो जाता है. मगर यार बड़ी पता नहीं, ये कहानी तो मैं हर किसी को नहीं बता सकता, मगर आपकी भाभी से भी कहा था. और बड़ी इसलिए मैं भी लिखता हूँ यार. अगर आप सोचे कि मैं इतने शायरी की लिखता है, मुझे हमेशा ये दलील होने चाहिए थी कि अगर हमारे एक दिन बच्चे हुए तो अगर उसने पूछा कि यार आपकी मोहब्बत की कहानी बताओ, मुझे सिर्फ कहानी नहीं बताना है, मुझे डेट के साथ उन्हें दलील दिखाना है कि यार मैंने ये कहा था. तो इसलिए मैं भी लिखता हूँ. मेरा भी एक हमेशा से ख्वाब रहा है ऐसा कि ना सारी तारीखें याद हों कि कब मुलाकात हुई थी, कब सबसे पहली दफ़ा ये हुआ था, ये वो हुआ था, और कौन सी तारीख पे किस जगह पे हमारी ये मुलाकात हुई थी. ये तमाम जो तफसीलें हैं जो अगर बंदे को याद हों तो
वाकई में आगे जाके जो आपकी जो कहानी बनती है ना बहुत आला होती है। जी 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 मुझे और कोई नहीं पता कि जो ये यकीन रखता है कि इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव इन समथिंग बिफोर यू नो व्हाट हैपन, कि बड़ी आसान है सब होने के बाद ये कहने कि मुझे हमेशा पता था, मगर वो होने के पहले कहने में ना शायद बेवकूफ़ लगेंगे, मगर हो जाए ना तो बड़ी अच्छी बात है। बेशक यार, ये तो सही बात है। बल्कि यार ये कई इंसानों में ये उनकी जहनियत में ऐसा होता है कि ना उनको खुद ब खुद चीज़ों की तारीखें याद हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए यार तारीख की बहुत एक अहमियत होती है कि अगर ये कोई कि इस तारीख पे क्या हुआ था। उनकी खुद ब खुद से यार एक उनकी दिलचस्पी होती है ये चीज़ याद रखने में कि ये किस तारीख में हुआ था, कौन सी जगह में हुआ था। ये तमाम चीज़ों में उनकी या तो दिलचस्पी होती है, खुद ब खुद उनको वो इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ हुई थी। तो या हमारी भी अगर स्कूल की अगर आपको यादें बताऊं तो कई तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब दिल के करीब थी। तो उन चीज़ों में तो यार हमें तारीख तो याद है कि इस तारीख पे दोहा के इस इलाके में इस ये हुआ था। पर कई ऐसी यादें हैं चाहे अगर हमें क्या कहते हैं यार, अगर एग्जैक्ट तारीख याद भी नहीं हो फिर भी हमें तकरीबन याद है कि इस साल में ये हुआ था, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जी सही है। और जब मैंने आपके भाभी से पहली बार मिला ना, मुझे तारीख याद है और जगह भी याद है, एंड आई कीप रेफरिंग टू इट एज लाइक आ खोना, वही कैफ़े। और यार मैं ना वो पहले आए थे मुझसे थोड़ी पहले, वो वहाँ बैठे थे और मुझे आज भी याद है कि मैंने तो उसको देखा है कि उससे पहले सोशल मीडिया पर, ज़िंदगी में नहीं देखा। तो जब मैं वहाँ पहुँचे ना कि कैफ़े के बाहर खड़े था और मैं देख रहा था कि ये कहाँ है, और एक कोने में वो बैठा था। और यार ये जो शीला होता है ना कि हिजाब की, वो काला वाला पहना था। और मुझे यार ऐसा लगा कि वो जो कमरे में जितने भी नूर थे सब उसके रुख पर थे, इतने खूबसूरत लगते थे वो, लगे थे और अब भी लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो शख्स नहीं, ये तो हूर है, और ये इंसान नहीं, ये फरिश्ता है, उतना खूबसूरत है। और मैं हमेशा उसे कहता हूँ, वो फिर भी यकीन नहीं मानते यार, मगर यार मैं ना उसको वहाँ देखकर मैं थोड़ा गुम हुआ कि मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना है। मैंने अपने ज़िंदगी में इतने खूबसूरती कभी देखा ही नहीं भाई, कि मुझे पता ही नहीं इससे क्या करना है। मगर मैं उसके सामने गए और मुझे यार, मैं अब भी अपने आप को मानता हूँ कि मैंने बात की, कि इतने खूबसूरत लड़की की बात करने भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किलात है उसके सामने कुछ मतलब जहनियत से बात करने के। मगर यार मुझे वो मुलाकात उसी दिन मैंने लिखा था कि क्या हुए थे, कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, कि मुझे वो याद रखना था। और तारीख भी मुझे याद है। और वो पढ़कर उसने कहा यार ये तो बड़ी खूबसूरत है, और वो सिर्फ उतने कहा, मगर मुझे पता है कि जितने भी मैंने लिखा ना वो कभी वो एहसासत की मुताबिक नहीं है। फिर भी यार मेरी ज़िंदगी की पता नहीं होगी या नहीं होगी, मगर बड़ी अच्छे दिन थे। और ये ख्वाहिश है कि हर दिन ऐसे ही गुजरे, मगर भाभी तो मान जाने तो ज़रूरत है, देखता है। पर नहीं यार माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी आदत है तारीख याद रखने की, क्योंकि आप देखें अभी पहले जैसा नहीं रहा कि आमतौर पे आपको जैसे आपके जन्मदिन पे आपको तमाम लोग बधाइयाँ देते थे जी। अभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग खुल के नहीं बाहर लगाते कि यार मेरी
इस तारीख को मेरा जन्मदिन है जी तो आपको चंद लोग ही होते हैं यार मतलब 4-5 लोग होंगे ऐसे जो आपको बधाई देने आते हैं कि यार और it's so much more meaningful that way too because they're like people who actually remembered those dates, you know. जी And even things like anniversaries, you know, like I know that your parents' anniversary is on the 14th. I'm surprised you remember that. Oh man, I'm surprised. Yeah, man, it's like one of those things, you know, like if you've known someone for that long, it's Yeah. kind of just built into you that it's Yeah. like, oh man, that's his or her birthday is on my Yeah. day. I think one of my surprises, Yeah. I've deleted crap. Alright. I still have, and I remember it was the 3rd of January, right? Like a couple weeks ago. And I messaged a friend completely out of the blue. Like, you know him actually. His name's Aditya. Aditya. I know that's a very common name for many people that name, but Yeah. do you know Chaturvedi? Dude, you will not believe this, but the dude I met last week, उसने उसी की कहानी बताए थे कि यार वो तो यहाँ कुछ साइबर सिक्योरिटी के काम कर रहे थे, उसकी माँ बाप भी यहाँ से जा रहे हैं. मुझे याद है यार, बड़ी अजीब है, मगर मुझे पता नहीं था आपने उससे मिला था. नहीं मैं मिला तो नहीं यार पर हम यार बचपन से काफी हमारी पुरानी दोस्ती है क्योंकि यार वो हमारे you know they were like family friends. हाँ मुझे वो भी याद है, आपके जो गैंग थे मुझे पता है जो भी था. नहीं यार मैं वैसे यार उनके साथ थोड़ा कम ही नजर आता. हाँ यार वो यार मैं बुरे बात नहीं कहना चाहता. हाँ बताओ. यार दरअसल वो पता है किसके ज्यादा करीब था आपको? ऋषभ तो याद होगा ना. हाँ ऋषभ कैसे भूल सकते हैं आप? कैसे, हम तो उसके ही गुनहगार हैं. वो यार आदित्य उसके ज्यादा करीब था. ऋषभ और जहान के क्योंकि वो तीन लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे. अच्छा. तो उनकी ज्यादा मतलब करीबी दोस्ती थी क्योंकि मिलते रहते थे वो लोग. Three Idiots. नहीं यार पर वो वैसे वाकई में बहुत करीब रहते थे क्योंकि मुझे एक दफा याद है कि ऋषभ जो है उनके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता आदित्य के. आपको ये सब कैसे याद है भाई? बड़ी ये बड़ी पता नहीं यार, ये ऐसी चीजें हैं जो ना आपके याद अगर आपकी याददाश्त बड़ी तेज हो ना तो ये ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं. पर एक दफा मुझे याद आया कि हम आदित्य के कमरे में थे और हम लोग कुछ टीवी पे देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे और we could hear someone like bouncing like a ball just above us. Yeah. जैसे हमारे ठीक ऊपर ना ऐसे आवाज आ रही थी कि कोई खेल रहा है बॉल से. तो फिर यार आदित्य ने फोन लगाया ऋषभ को. He saw bouncing a ball. No way. हाँ यार इतना करीब रहते थे पर खैर यार बात ये हो रही थी ना कि मुझे ऐसे ही 3 तारीख को याद आया. अच्छा यार उसका जन्मदिन होता है. I don't know if he like posts if he has it on his like profile or anything, but I've like deactivated anyway, right? So I'm just like kind of there on Messenger. And so I just wished him, you know, out of the blue, and man, he was really like he was really touched to hear that, you know. It's really? Like and I do think it shows a way in which like dates are so meaningful because do you remember important dates like that, like someone's birthday or someone's like anniversary? You know, it really is very like shows that you're someone who cares. You know, like I can only think of someone who who like cares who would even remember that. Yeah.
100% man, and I've started to just appreciate those people. बाकी सबकी मुझे चाहिए नहीं, जो अच्छे वक्त में सिर्फ साथ है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार. और what was something I wanted to say, dates, yeah, so now आजकल यार मुझे मतलब every day I write, and I write like when I write I do put like the date down, और वो मुझे याद है. हाँ, मगर जो भी बात होता है मुझे मतलब मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स तो साइन करता हूँ और मुझे उस वक्त डेट नहीं याद आता है. अगर आप मुझे अभी पूछो कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वॉच नहीं है, कुछ नहीं है, ये कौन से महीने हैं मुझे शायद याद नहीं होंगे, आज कौन से दिन है याद नहीं होंगे, साल शायद होंगे, पता नहीं, कभी कभी वो भी गलत होता है. बट आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ द डेट इन जनरल, राइट. कि जब लोग आते हैं और बताते हैं कि यार मैं आपको इस तारीख को मिलेगा, मुझे समझ ही नहीं आता. मैं उसको बताता हूँ यार जिस दिन मिलना है ना उस दिन सुबह राब्ते करो. मुझे ही नहीं पता कि आप किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं. बट व्हेन आई राइट्स लाइक माई मेमोरीज, द थिंग्स दैट आई वांट रिमेंबर्ड, तो मैं डेट डालता हूँ. बाकी यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. हर दिन ऐसे ही मतलब एक ही दिन, इट्स लाइक ग्राउंड हॉक डे, एक ही दिन चलते रहते हैं. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेट से, सिर्फ मोहब्बत के अलावा बाकी सब सेम है. ये बात भी है यार, क्योंकि मैं भी फिर अपनी यादों पे थोड़ा ना थोड़ा यादों के बारे में सोचूं जी, तो तारीखें मुझे ज़्यादातर वही याद आती हैं जो कोई बंदी से मुतल्लिक थी. कि हमारी जैसे इस दिन पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, या इस दिन हमने ना आपसे मुजाहिरा किया था कि इख्तियार हम यही रास्ता करना चाहते हैं. जी, जब आपने अपने जज्बातों का पहली दफ़ा इजहार किया था जी, ये वाली जो तारीखें हैं, खासकर जब आप थोड़े मतलब 15-16 साल के होते हो तो आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि आपका जो पूरा दुनिया का देखने का नज़रिया है जी, वो फिल्मों से आता है, और फ्रॉम वाचिंग फिल्म्स एंड टीवी शोज. तो यार हाँ, ये बात तो है. मुझे आज भी जैसे याद है यार कि इस तारीख को दोहा सिनेमा में हमारी यार बड़ी एक बहुत करीबी मुलाकात हुई थी. इस तरह की चीजें हाँ यार, ये तो आपके साथ हमेशा रहती हैं. और खासकर हमारे, पता नहीं, हम दोनों क्योंकि एक ही बंदे हैं जी, तो जी, हमारे जहन में ये बात तो हमेशा रहती है कि तारीख हमारे लिए ना, आपको अभी भी याद होगा जिससे आपकी किस तारीख को मुलाकात हुई थी, किस तारीख को अलहदगी हुई थी. ये भी अभी तक याद होगा. जी बेशक. और बाकी और कुछ याद ही नहीं यार. अच्छी बात है मगर फिर भी इट्स लाइक यू नो कौन सी अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो जो हर दिन होते हैं सब हम लिखते नहीं, जो सिर्फ ख़ास बात है वो लिखता है. ऐसे है, हम जब ख़ास कुछ होते हैं तो तारीख याद करता है, तो तारीख से सिर्फ ख़ास बात याद आते हैं. अच्छी बात है. ये तो है यार. और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब लिख रहा हूँ अपनी दिन की तारीख कि आज क्या हुआ था, तो तारीख के साथ ही लिखता हूँ. और उसमें जितना हो सके उतनी मैं यार अच्छी चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ कि किन चीज़ों के लिए हम यार शुक्रगुजार हैं, किन चीज़ों के हम यार शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में है इस वक्त. क्योंकि वो जब आप वापस जाके पढ़ोगे तो आपको फिर पढ़ के भी एहसास होता है और आपके अंदर एक आप इन चीज़ों के ज़्यादा शुक्रगुजार होते जाते हो. सही, बड़ी अच्छी आदत है यार. और जब भी मैं अपनी पुरानी शायरी या कुछ पढ़ता हूँ कि अब तो 1 साल हो गया आपकी भाभी के साथ, तो मैं पढ़ सकता हूँ कि पिछले साल इसी दिन मेरी क्या एहसास है, और ये मुझे चाहिए था.
कि I could see, you know, कि where I was last year and what I was feeling. तो it's always better. Like आज कुछ काम पर करने तो पड़ेंगे, मगर कल की खूब यादें होंगे. बेशक यार, ये तो याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई दफा यार आप आराम से ना बंदा भूल भी जाता है कि उसने कितनी मेहनत की थी कोई चीज हासिल करने के लिए. जी. तो मेरे साथ जैसा ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि मेरी बहुत खराब आदत है, बहुत पुरानी आदत है कि मैं यार बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता हूँ. तो मैं भी वही है. मिलने के बाद ना कुछ एहसास नहीं होता है. ये तो है यार, ये ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि एक बार कोई चीज आपने हासिल कर ली तो बहुत जल्दी आप भूल जाते हो यार कि इसको हासिल करने में कितनी मेहनत लगी थी. जी. और मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने ना ख्यालात, रोज के जो ख्यालात हैं वो लिखें, तो आप में ये फिर एहसास भी बढ़ने लगता है कि अच्छा यार देखें, ये पिछले कितने तमाम महीनों से या सालों से मैं मेहनत करता आ रहा था. रोज मेरी ये हालत होती थी दिन के आखिर में कि क्योंकि मेहनत कर के यार बंदा मतलब थक गया था, और ये सब करने के बाद ये चीजें हासिल हुई हैं मुझसे. तो चीजों का मतलब वाकई में शुक्र अदा करना चाहिए, और अपना ना अपने जो काम हैं और आपकी जो उम्मीदें हैं वो सब आपको उन पे आपको अमल करना चाहिए. जी. बड़ी अच्छी आदत है कि हम खुद ब खुद समझने लगा कि हमारे कमियां क्या है और हमें बदलना क्या है. मगर यार ये वाकई सच है कि हासिल करने के बाद कुछ शख्सियत नहीं रहते. मगर ये मुझे सिर्फ इसमें एहसास नहीं हुआ, ये मोहब्बत में. बाकी सब में मुझे ऐसे लगता है कि it's always like on to the next one, you know. जो भी ज़िंदगी में हासिल हुए हम अप्रिशिएट नहीं करते वही दिन पर, नहीं करते अगले क्या करने हैं यही सोच है. मुझे सिर्फ यकीन है कि मोहब्बत में वो नहीं होंगे आपके भाभी के साथ कि वो भी हासिल करने की कोई चीज़ नहीं. मतलब ऐसे कि आपने ये एक फिल्म है यार कि नाम है उसकी About Time, and it's a pretty decent film. Like it has Rachel McAdams, and her husband is a time traveler, so he can go back in time whenever he wants to, and it's just him going back and living the days that he liked with his wife. And मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसे ज़िंदगी होने चाहिए कि हर दिन रीसेट होता है. कि सही है कि कल उसने कहा कि वो आपकी मोहब्बत मानती है, वो भी आपसे करती हो, मगर अगले दिन तो ये दोबारा तो इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा भाई. मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इट शुडंट बी समथिंग दैट्स टेकन फॉर ग्रांटेड. तो हर दिन वो मेहनत करनी पड़ती है. एंड अगेन इट्स वेरी ग्राउंड हॉग डे, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू एज वेल. पता नहीं, होंगे शायद. नहीं यार, ये तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ें भूलना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि हासिल करने के बाद तो यार आप अगले दिन ही भूल जाएं कि ना यहाँ तक पहुँचने में कितनी वाकई में मेहनत लगी थी, कितना मतलब कितना कुछ हमने खोया है ये पाने के लिए. जी. तो यार ये बात तो मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ, पर फिर भी यार खुद को याद दिलाना होता है कि हमारा क्या तजुर्बा रहा है रोज का. और ये पढ़ के आपने, मुझे लगता है कि आप एक इन चीज़ों के ज़्यादा शुक्र अदा करने लग गए हैं. जी. और हमारे यार ये भी मसला है कि हमारे जो गम की यादें काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो I always try to make sure that, you know, if I'm looking back in time,
कि मैं वो डिप्रेशन में नहीं चल जाते। और वो आसान है कि जितने भी खुश यादें काफ़ी गम के भी है। तो इट्स नॉट इजी। मगर यार वैसे आज सहर ने मुझसे कहा था कि सिर्फ 4 सेशन हो गए हैं, उसने मुझसे कहा कि यार आप तो बड़ी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मैं वो सुनकर खुश था। और बात ये है कि हम ये जानते हैं कि भाई ये गम की यादें हमें कभी छूट ना जाएंगे, तो हमेशा रहेंगे। मगर हम यार मुझे लगता है कि we've learned how to manage it, how to deal with it, how to cope with it. तो पता नहीं यार, शायद मैं भी याद आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि once you've processed the canon events of your life and जो भी आपकी सोच में पड़ा था मगर आपने प्रोसेस नहीं की, वो प्रोसेस करने के बाद तो यादें तो ठीक है कर सकते हैं कि वो इमोशन नहीं आ जाते, सिर्फ याद होता है। बट यार एक और याद आ गया कि जब हमने वो बंदे से मिला पिछले हफ्ते। So he listened to one of the episodes of the podcast and he goes, dude, I didn't know you and Karsh were tight. And I'm like, what? He's like, he didn't even know we were like that close. और मैंने कहा यार पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आते, but I think a lot of people don't know as well. जो ये बंदा तो हमारे साथ था पूरे, मतलब टीम में भी कभी कभी था। वैसे काफ़ी नालायक लेग स्पिनर से, इसके खेलने के बड़ी आसान थे, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं पता था। पर नहीं यार, ये तो वैसे बंदों को शायद नहीं भी पता हो, क्योंकि हमारी ऐसी कोई साथ में तस्वीरें भी नहीं थी। और हमारी साथ में बहुत कम लोगों को पता होता है कि यार हमारी ना काफी पुरानी दोस्ती है जी। पर नहीं, अच्छा है यार ये तो। वैसे कि ना थोड़ा हम लोग ही रहते हैं। पर वाकई में यार ये तो बहुत कम लोग हैं जो उतने साल जीपीएस में थे भी। तो ये तो होना ही था यार कि हमारी ना काफी अच्छी दोस्ती रही हो जी। मगर यार काफ़ी लोग और भी था हमारे साथ, और उसके साथ उतने भी अच्छा ताल्लुकात नहीं है। मगर ये बंदे को मैंने मिला सिर्फ 1 घंटे के लिए और सब बात वही ख़त्म हो गई। हमें ऐसे नहीं लगे कि यार हमेशा मिलना चाहिए। मैंने 10 साल बाद मिले तो ऐसे ही लगा कि यार अगले 10 साल से बाद ही मिलता है, बेहतर है। मगर यार उसकी ना, जब हम मिले थे उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हुए थे कि उसकी शादी हो गई, उसकी भाई की शादी हो गई, सबकी वो तो बड़ी अजीब कहानी है यार कि he settled in the Bay Area and he kept talking about arson and a bunch of really weird shit, homelessness. काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, मगर ये थोड़ी दोस्त को बताने की कहानी है। हम ये तो विकिपीडिया में भी मिलते हैं। तो बातें हो रहे थे और उसने मुझसे पूछा कि यार ये लोग काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी कुछ हुआ होंगे आपके ज़िंदगी में, सही। और उसने पूछा कि यार क्या हुआ, और यार मैं तो पूरे लाइक ब्लैंक हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैंने 10 साल में क्या की। और मुझे यार वैसे काफ़ी की है मगर कुछ याद नहीं आया। मुझे सिर्फ एक नाम याद आ गई और उसके बारे में तो मैं इससे बता नहीं सकता था, और वो आपकी भाभी की नाम है। और बाकी कुछ मुझे उतना ख़ास नहीं लगा यार। बट समटाइम्स इन लाइफ यू रियलाइज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। और वही बात है कि 10 साल में क्या की, एक शख्स के साथ मुलाकात हुई, उतना ही हुआ यार। नहीं ये तो है यार। आपको फिर ये पूरा बयान करना भी मुश्किल होता है कि यार कहाँ से शुरू करें और क्या क्या बताएं और क्या ना बताएं। और पर नहीं यार, मैं तो यार खुद काफी मैंने उम्मीद देखी थी कि आप दोनों को साथ मैं देखूंगा, क्योंकि जब आपने तस्वीर भेजी मुझे लगा यार ये कैसे हो सकता है कि
आपकी वाकई में मुलाकात हुई और जी जी आप और वो भी ऐसी जगह में जहाँ हम मिलते थे जी जो ना यार वो जगह वैसे बहुत सही है वैसे देखा जाए यार, बड़ी अच्छी जगह है। पर हाँ यार मतलब ये कैसे हुआ यार और कब हुआ और was he there to like see his family or नहीं मुझे यार वो जिंगल याद आ रहा है जो टेलीविजन में थे, जो मूड्स के थे और जो हमारे नालायक सीनियर्स ने गाए भी थे, क्या हुआ कैसे हुआ क्यों। मगर भाई यार वो गाना बहुत चला था उस वक्त जी, जब जी। वहाँ कंडम या नॉर्थ इंडियन वैसे कंडम क्या जी मगर मूड्स आजकल यार देखते भी नहीं, मुझे पता नहीं कि ये क्या हुआ है उसके। मगर वैसे हम क्यों लेंगे, ये भी बात है मगर भाई लेकिन हाँ ड्यूरेक्स पे एक टाइम बहुत चला था आपको याद होगा हाँ वो यार वो जो इंसान उसके अंदर होते थे ना, मुझे याद है। हाँ यार वो जो क्या कहते हैं यार जो सीमेन जी, जो the seamen you know the men who were on the sea क्यों ये सब याद है भाई। भाई वो हर क्रिकेट एड के बीच आता था यार। हाँ उस यार, वक्त शुक्र है कि हमारे किसी को कुछ अंदाजा नहीं था वरना आप सोचो यार हमारे वालिदों के लिए कितनी मतलब awkward होते कितनी थे। यार अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती थी और यार मुझे आज कि, तक समझ नहीं आया कि टेस्ट क्रिकेट की दौरान ये दिखाने की क्या जरूरत है, किसकी ऐसे सीन चल रहे हैं भाई कि आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, किसकी। सही में यार मतलब सारे अंकल देख रहे हैं मतलब हाँ जी। किसी को ये कंडम खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। जी 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 हाँ, जी। मगर यार मुलाकात क्या ऐड होता था भाई लेकिन वाकई में आज भी याद है तो कुछ खास है यार। भाई मगर यार मुलाकात के उसने मैसेज की थी कि यार मैं यहाँ हूँ तो आप फारिग है तो मिलते हैं, तो मेरे अब यार ये आदत पड़ गई कि मैं लोग को टेस्ट करता हूँ कि तुम्हें मुझे कितना मिलना है। सही, सब कहते हैं मुझे मिलना है तो मैं टेस्ट करता हूँ कि यार आप रात के 3 बजे आ जाओ, मैं फारिग है। तो उसने एक थर्सडे मैसेज की थी और यार 12 बजे थे और मैं एक दोस्त की बहन की शादी के बाद चाय पी रहा था एक दुकान पर जो सड़कों पे छोटा दुकान था। तो उसने मैसेज किया और बताया कि यार हम फारिग है, तो मैंने कहा मैं भी फारिग हूँ मगर कब तक। तो उसने कहा कि यार मुझे घर जाना है, तो मैंने कहा ठीक है यार किसी और दिन मिलता है। तो उसने एक दिन मैसेज की और यार ये आजकल ना बड़ी मसले है शेड्यूल करने की, लोग फारिग ही नहीं होता, तो शेड्यूल करने पड़ा और एक दिन काम के बाद उसे मिलने गया और यार मुलाकात हुई और 1 घंटे ही था उसकी कि वो भी कहीं जा रहा था और मैं भी मैं भी कोई और काम में मसरूफ़ था। एक वैसे नालायक कहानी आपको बताती हूँ कि यार ये हमारी इंट्रूसिव थॉट्स है, खुदा करे ये आपके भाभी के सिवा कोई और नहीं सुनते, मगर उसकी बीवी जो है वो गोरी है। सही, तो वहाँ की है, तो उसकी प्लान ये है कि वो केन्या जा रहा है। सही, इसके बाद कि जो ये गोरों की आदत होता है ना कि वाइल्ड लाइफ अपने आँखों से नज़र आने चाहिए, ऐसे वाले प्लान है। तो मैंने सुना और मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मगर मेरे जहन में यार ये सोचता कि भाई आप तो ख़ुद गाँव से है, आपके इर्द गिर्द ये जानवर वही नज़र आ सकता है। आप ना ये समझो कि मतलब जो मुगलित है वो आप ही है भाई, तुम कौन सी जंगल देखने जा रहे, तुम तो वहाँ की है। और ये भी बात है कि टार्जन और जेन में ना, जेन को ये बड़ी एहसास होंगे मगर आप तो टार्जन है, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप क्यों केन्या जा रहे हैं भाई। मगर मैंने कहा नहीं और ये यार इंट्रूसिव थॉट से कहने नहीं चाहते मगर फिर भी ये सोच आए थे और हम तो वैसे ही बड़ी नालायक इंसान है।
मगर मुलाकात हुए और यार उसने एक और नाम ले ली कि वो दोनों एक ही जगह से कि बेवड़ा की। और मैंने उनसे कहा कि यार वैसे वो कोच थे हमारे, भाभी अगर सुन रहे तो हमारे कोच थे, और कर्श उसको क्रिस्टियन की थी बेवड़ा कि नजराने में वो तो बेवड़ा लगते थे मगर वो पीते नहीं थे। तो मैंने यार उनसे कहा कि अच्छा बेवड़ा, तो उसने पूछा कि यार ये कब आपने नाम रखा था। मैंने कहा यार कर्श ने ही रखा था, हमसे वही बुलाता था। और मैंने उनसे ये भी कहा कि जब भी उसने हम दोनों को नजराते थे सिर्फ ये बताते थे कि यार बाल कटावे और ये सब यादें अब भी है यार कि बड़े अच्छे इंसान थे। जितने भी हमारे हम मसले में पड़ जाते वो हमें निकलते। और कोच तो थे, वो खेलने खुद नहीं जानते थे मगर बाकी सब अच्छे करते थे यार। और काफ़ी अच्छे लगे कि उसे मिलने ऐसे, वो भी हकीकत नहीं उतना भी अच्छा नहीं लगा मगर मिला बंदे से तो कुछ ना कुछ बातें तो हुए। और यार क्या कहूँ कि अलविदा कहे, और मुझे पता है कि कुछ ख़ास नहीं थे, मिलेंगे मगर क्यों मिलेंगे, जब मिलेंगे मिलेंगे। यार ये तो बड़ी ये नाम मैंने बहुत बहुत साल बाद मैं सुन रहा हूँ। बेवड़ा तो यार ये तो हाँ वाकई में बहुत अरसों बाद सुन रहा हूँ, क्योंकि तो मैं भूल ही गया था कि ये भी एक अंकल हुआ करते थे हमारे ज़माने में। पर यार वैसे पुराने यार, एपिसोड में आपने अंकलियत कहा था और मेरे यार फेवरेट अल्फाज हो गए अंकलियत। यार वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी उस उम्र के होने वाले हैं जब अकलियत हमारे अकलियत की तरफ हम चलते जा रहे हैं। मगर यार मैं तो यार ये जो बेवड़ा की कहानी है ना, मुझे लगता है कि एक एपिसोड उसमें ही जाएगा। तो ये तो हमारे 1 घंटे हो गए, तो ये ख़त्म करते और दूसरे शुरू करते, क्या कहते हैं? क्यों नहीं बेशक किया जाए यार, इसका भी खैर मकदम करते हैं हम। जी इसकी तो मुझे पता नहीं मगर म्यूज़िक से काफ़ी जुड़ा हुआ है, और तो वही आपकी भी इजाज़त है तो वही नाम रखते हैं। और यार एक गाना है जो पुराना है और आजकल मेरी जहन में पड़ा है, वो भी मैं प्ले करना चाहता हूँ। ये आपके भाभी के लिए, और ये मेरी दिल की जो एहसास है वही है, तो ज़रा सुन लो और बताओ। بابا اشحن لي بابجي. طيب. I would pay for this shit if I believed in pain. ये कौन है यार? सुन लो, बड़ी पुराने मगर अल्फाज में काम है भाई, सिर्फ वो सुन। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। उतना ही है यार, और एहसास होती है ये आजकल यार बड़ा ये अदनान सामी तो नहीं है शायद होंगे मुझे यार आवाज, क्योंकि हाँ। उनकी बड़ी एक सही है, कवर है उसकी पहचानी आवाज वाली है। होती है। हाँ जी, ओरिजिनल उसकी अदनान नहीं। सामी। हाँ जी ओ यार मुझे ऐसा लगा यार ये आवाज कहीं मैंने सुनी हुई है। जी और वो पर बहुत सबसे कमाल है, बहुत कमाल। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज बिन पॉइंटलेस स्टोरीज विद Karish and FS, episode 9. This one is all about music.